Welcome students, class 12th, accounts, no, not accounts but commerce. In commerce today we will discuss chapter number 4, banking latest trends. Okay, banking we will discuss today a banking. Okay, क्योंकि banking और the latest आज की डेट में क्या है, latest trends. Today there are new banking system, banking methods of doing the transaction with the banks. So today we will discuss how fund transfer system under the banking. Okay, so this chapter is chapter 4, banking. Okay, is a previous chapter I discussed you. Okay, those which I don't discussed, read that points, and if there is a problem please ask to me. Okay, now so today we will discuss banking. Okay, so in banking, first is RTGS. Okay, this is a fund transfer system, RTGS, which is also known as real time gross settlement. Okay, real time gross settlement, RTGS. Okay, it is a fund transfer system. Okay, it is a fund transfer system under which transaction of fund take place from one bank to another on real time and gross basis. Okay, settlement on the real time means there is a no waiting period. The transaction is settled as soon as it's proceed. Gross settlement means the transaction is made on one to one basis without bunching with any other transaction. It is more instant settlement of system, usually mainly for high volume payment. Okay, किसी इसका जो मतलब क्या है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है कि इट इज़ अ फंड ट्रांसफर सिस्टम. बैंकिंग ये सुविधा देता है, बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी अपने कस्टमर को कि यू कैन ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन द रियल टाइम बेसिस. ओके, ऑन द रियल टाइम बेसिस मतलब देयर इज़ अ नो बंचेस. ओके, कि सपोज आई हैव टू ट्रांसफ़र द मनी टू द माई कस्टमर, माई क्लाइंट. Suppose I am the SBI customer and other person is living in the Delhi, or I have to transfer the 5 lakh rupees. So what can I do? I directly go to the bank and I can do the RTGS. I can fill the RTGS form. What will happen when I will fill the form? I will give in the bank counter. ओके, और इन माई अकाउंट ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए. मैं कभी भी उस पैसे को क्या करता हूँ, RTGS के थ्रू क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एट सेम टाइम. ओके, विद इन अ मिनट्स और यू कैन से सेकेंड्स. कि कभी कभी ये मतलब जैसे ही वो एंटर करेंगे अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दैट पर्सन. ओके, तो इट इज़ अ सेफ मेथड कि you can proceed the large funds from the RTGS from one bank to another bank. Okay, तो ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट रियल टाइम मीन्स देयर इज़ अ नो वेटिंग पीरियड. इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि सपोज आपने अभी पैसा मंगाया तो आप अभी मतलब वर्किंग बैंक्स के वर्किंग हावर है उसमें जाके आप फंड को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो. ओके, द ट्रांसफर इज सेटल एज सून एज इज प्रोसीड. देखो, RTGS सर्विस इज़ अवेलेबल टू अ कस्टमर 9 to 3 PM. ओके, मॉर्निंग जो बैंकिंग टाइम इज़ 9 AM to 3 PM ऑन द वीक डे बेसिस, 9 AM to 12 noon ऑन सैटरडे, और ऑन सैटरडे 9 to 12. ओके, RTGS सर्विस जो बैंक्स होते हैं, बट एक यू कैन कीप इन द माइंड द बैंक विच आर द CBS विच हैविंग द कोर बैंकिंग सिस्टम. CBS सिस्टम मीन्स कि इंटरनेट सिस्टम. CBS सिस्टम, दैट बैंक will only provide you the RTGS services. Okay, the RTGS service is available to a customer from 9 to 3 PM on the week and on Saturday 9 to 12 on Saturday. This is the fastest possible system for transfer of money through the banking system. Okay, now what are the features of RTGS? The main features of RTGS are as follows. Okay, RTGS is not available at the bank branches in India. The facility is provided only a CBS. CBS means core banking system. It is a system by which all the banks are linked with each other by the internet. Okay, CBS system enable the banking. Okay, तो it is available at the only those branches where the CBS system, आप बैंक में जाओगे CBS. okay, CBS ब्रांच बोलते हैं उसको. CBS ब्रांच मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम. ओके, ऑल द बैंक्स आर क्या कहते हैं, लिंक विद द ईच अदर बाय द CBS सिस्टम enabled the bank. RTGS transactions are proceed individually and continuously throughout the banking hour rather than in the batches. RTGS system क्या होता है बच्चे, from 9 to 3 PM, from 9 AM to 3 PM continuously. ओके, ये प्रोसेस होंगे.
ओके, देयर विल बी अ नो बंचेज और अ बैचेस के मतलब बैंकिंग हावर्स में आपको ऐसा नहीं कि आफ्टर 1 आवर योर मनी विल बी ट्रांसफर, कंटिन्यूसली द मनी विल बी ट्रांसफर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन इज़ 2 लाख। कि कहने का क्या मतलब, मिनिमम अमाउंट कितनी है, 2 लाख मीन्स कि लेस मोर देन 2 लाख और मोर देन 2 लाख रुपीज़ यू कैन ट्रांसफर द, देयर इज़ नो अपर सीलिंग ऑन द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। कि मतलब मोर देन 2 लाख और मोर देन 2 लाख, इट मे बी 3 लाख, 10 लाख, 4 लाख, ओके, 30 लाख, 1 करोड़, एनी अमाउंट, नॉट अपर लिमिट, बट मिनिमम इज़ 2 लाख रुपीज़। मिनिमम कितना मनी ट्रांसफ़र करना है, 2 लाख रुपीज़। द रिसीविंग ऑफ बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट विद इन द 30 मिनट्स। ओके, और कितने मिनट्स में, विद इन द 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफ़र मैसेज। तो 30 मिनट्स के अंतर्गत क्या करना है, 30 मिनट्स से तो पहले करना ही करना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 मिनट्स की। मैंने अगर अभी कोई किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र किया है इन दिल्ली, मैंने अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र किया है 10 लाख रुपीज़, ओके, तो अगर मैंने उसको 10 o'clock में किया है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम है कि 10:30 तक डैट फंड विल बी ट्रांसफ़र। ओके, वैसे ऐसा होता नहीं है, जैसे ही आप क्या कहते हैं फॉर्म फिल करके आप वहाँ दोगे, आपका तुरंत विद इन अ मिनट्स फंड विल बी ट्रांसफ़र। ओके, द ट्रांसफ़र इज़ अ फाइनल एंड इरिकवरेबल। ट्रांसफ़र क्या होता है, फाइनली होता है। ओके, उसके बाद दीज आर द, ये किस लिए होता है बच्चे, दीज आर द हाई वॉल्यूम पेमेंट के लिए। किसके लिए, कि जब आपको बड़ी अमाउंट में क्या करना है, पेमेंट करना है। ओके, तो आरटीजीएस इज अ दिस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र विच इज़ ऑल्सो नोज एज निफ्टी, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, तो निफ्टी इज़ अ कंट्री वाइड सिस्टम बाई विच एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन बैंक, from any bank branches to another individual firm or a company having an account with any other bank branches in the country. The fund transfer take place at पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इन दिस देयर इज़ नो कंटिन्यूअस, एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसके लिए क्या होता है, निफ्टी में क्या होता है कि कंट्री वाइड ये भी फंड ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है। दिस इज़ ऑल्सो द मनी ट्रांसफर फंड ट्रांसफर सिस्टम विच गिव्स फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक। इन दिस यू मस्ट हैविंग द अकाउंट इन बैंक, और आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आप किसी भी बैंक में क्या कर सकते हो, निफ्टी के थ्रू क्या कर सकते हो, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, ऑल ट्रांसफ़र आर हेल्ड टिल दैट टाइम। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होता है। क्या गिवन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होता है। इन अदर वर्ड्स, निफ्टी ट्रांजेक्शंस आर शटल इन द बैचेस। ये खासकर किस में होते हैं, शटल बैचेस में। ओके, मतलब 1 बैच, मतलब 10 to 11 का एक बैच बनेगा। जितना मतलब अगर आप जाओगे तो बैंक एक साथ नहीं करेगा, 10 से 11 के बीच अगर कोई बैंक में जाएगा तो उनके एक बैचेस बनाएगा कि 10 से 11, 10 to 11 ऑल द पर्सनस हु आर सेंडिंग मनी ही विल मेक द बैच, और आफ्टर 11 o'clock he will send the money. Okay, during these weekdays nifty transaction take places in the 7 times between 8 to 7. ओके, कि नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल बैंकिंग हावर्स में क्या होता है, फ्रॉम 8 to 7 PM, इट मीन मॉर्निंग टू 7 इवनिंग। ऑन सैटरडे निफ्टी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 6 times a day between 8 to 1 PM. Got it? Take place within times between 8 to 7 PM. On a Saturday, Nifty transaction take place from 6 times between 8 to 1. Okay, on Saturday there is a time period because there is a half day. ओके, तो उस दिन क्या होते हैं, ओके, एनी निफ्टी ट्रांजेक्शन इनिशियल आफ्टर डेस्टिनेशन सेटलमेंट टाइम हैज़ टू वेट टिल द नेक्स्ट डेस्टिनेशन टाइम इज सेटल। तो इसमें वेट करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, वेट। ओके, बिकॉज बैंक क्या बनाता है, उनके बैचेस बनाता है, उनके क्या बनाता है, बैचेस बना के उनको क्या करता है, मनी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ओके, नाउ सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ निफ्टी। देखो, अ बैंक ब्रांचेज मस्ट निफ्टी अनेबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ निफ्टी फंड ट्रांसफर नेटवर्क। ओके, इसको एक पार्ट बनना पड़ता है निफ्टी का। ओके, एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी कैन मेक निफ्टी इवन विदाउट हैविंग द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश निफ्टी। ठीक है, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट हो। ओके, आप कैश डिपॉजिट करके भी क्या कर सकते हो, निफ्टी को ट्रांसफ़र। सपोज यू हैव टू ट्रांसफ़र 50,000 रुपीज़, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक में 50,000 रुपीज़ जमा करके और किसी को भी मनी क्या कर सकते हो, 50,000 रुपीज़ क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, in order to receive funds through the nifty system an individual firm or company must have account with nifty enabled bank.
ठीक है, इन ऑर्डर टू रिसीव फंड, अगर आपको बस, लेकिन जिसको रिसीव करना है फंड को, उसका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसका उस बैंक में क्या होना चाहिए, सपोज मैंने ट्रांसफ़र करना है तो मेरा अकाउंट जरूरी नहीं है उस बैंक में हो, लेकिन जिसको मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि मेरा अकाउंट तो कहीं भी हो सकता है, सपोज़ मैंने अपने फ्रेंड को दिल्ली में 80,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अब मैं तो किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन जिसको मैं फ़ंड ट्रांसफ़र करूंगा उसका अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, ठीक है। कि अगर मुझे अगर मेरे उस फ्रेंड का क्या कहते हैं अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तब मैं क्या करूंगा, स्टेट बैंक में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके क्या करूंगा, निफ्टी करूंगा, तभी उसको फ़ंड मिलेगा। बिकॉज मतलब जिसने सेंड करना है उसका तो अकाउंट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही कैन डिपॉजिट द कैश ऑल्सो, ओके। बट जिसको रिसीव करना है, ही मस्ट हैविंग द बैंक अकाउंट ऑन इन दैट बैंक, ओके। तो देखो, इन ऑर्डर टू रिसीव द फंड थ्रू द निफ्टी सिस्टम, एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी मस्ट हैव अकाउंट विद निफ्टी अनेबल बैंक, गॉट इट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इन द केस वन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू निफ्टी इज 49,999, ओके। कि जिसका अकाउंट नहीं होता है निफ्टी में, ही कैन ट्रांसफर 49,999 रुपीज़, ओके। कि वो 50,000 से कम ही कर सकता है ट्रांसफ़र, 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता, 50,000 से कम ही ट्रांसफ़र करता है, अगर मेरा अकाउंट नहीं है उस बैंक में, मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है। देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट डैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू निफ्टी व्हेन वन हैज़ अ बैंक अकाउंट। अगर आपका दोनों का बैंक अकाउंट है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम कि आई ऑल्सो हैविंग द क्या कहते हैं बैंक अकाउंट, एंड दैट पर्सन जिसको मैं सेंड करूँगा उसका भी क्या है, ऑलरेडी हैविंग द बैंक अकाउंट, देन देयर इज़ अ नो लिमिट, ओके। निफ्टी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन द बैचेस, निफ्टी ट्रांजेक्शन किस में लेते हैं पार्ट, बैचेस में। निफ्टी कैनॉट बी यूज टू रिसीव फॉरेन रिमिटेंस, ये फॉरेन करेंसीज को नहीं करता है, ठीक है। द सेंडर ऑफ फंड्स टू पे द फॉलोइंग चार्जेस, लेकिन इसके लिए बैंक चार्जेस काटता है, देखो फॉर 1,05,000 रुपीज़ 5 प्लस सर्विस टैक्स, अगर आपने 1,00,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है तो बैंक आपसे 5 रुपीज़ प्लस जो भी सर्विस टैक्सेस होते हैं वो काटेगा। फॉर अबाउट 1,00,000 to 2,00,000 15 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स 15 रुपीज़ तो काटेगा जो भेजने वाला है, और प्लस सर्विस टैक्स फ्रॉम अमाउंट टू 2,00,000 to 25 2,00,000 अबव देन 2,00,000 रुपीज़ 25 प्लस सर्विस टैक्स, गॉट इट। कि बैंक इसके लिए क्या करता है, अपने सर्विस चार्जेस काटता है। तो अगर 1,00,000 तक इफ़ यू आर सेंडिंग 1,00,000 मनी, देन बैंक विल कट 5 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स, 5 रुपीज़ के साथ साथ क्या काटेगा, सर्विस टैक्स, ओके। मोर देन 1,00,000 रुपीज़, ओके, और लेस देन 2,00,000 रुपीज़ द बैंक विल कट 15 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स। अब मोर देन 2,00,000 फ्रॉम अमेन अमाउंट टू 2,00,000 रुपीज़ बैंक विल कट 25 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स, ओके। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द निफ्टी, देखो difference between the nifty and RTGS, okay, I am discussing nifty transactions are settled in the batches, nifty transaction किस में settled होते हैं, batches। RTGS transaction proceeds continuously, ये क्या होता है, continuously proceed करते हैं। minimum value is 2,00,000, got it। number of transfers 6 times on a weekday and 3 times on Saturday, okay। no limit on the number of transaction during the day। now next, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग, ओके। तो दीज रियल टाइम, और ये निफ्टी इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक टर्म है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एनी यूजर हैविंग द पीसी और ब्राउजर कैन एक्सेस, मतलब इट मीन्स यू आर ऑल्सो हैविंग द मोबाइल फोन, बैंक वेबसाइट, यू कैन एन अवेल बैंक सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग, ओके। तो आज की टुडे we all are using, all the maximum persons are using the e-banking, no need of going to the bank, okay। आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से और या फिर अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, यू कैन डू द e-banking, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ओके। तो द मेन फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग आर, देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, देयर इज़ no need of face to face contact between the bank and
client. Okay, both the banks and client need a computer or mobile. चाहे banks and client दोनों किसमें कर सकते हैं कि banking they can do in the computer or mobile. The client have to give e-banking option to the bank. Okay, उसको बैंक में जाकर if you want the services of e-banking, तो you have to fill the form in the bank, you have to go through the e-banking option, then bank will give you the e-banking फैसिलिटी. ओके, आपको वहाँ वो फॉर्म भर के ई बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए अप्लाई करना है, तब बैंक विल प्रोवाइड यू ई बैंकिंग सर्विसेज. गॉट इट. द बैंक स्टाफ एंड द क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड द ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी. ओके, तो उनको तो ये तो सिंपल है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? ई बैंकिंग हैविंग द बेनिफिट, कस्टमर कैन गेट टू 24/365 days of service. इट मीन्स 24/7, 24/7 कि 24 आवर्स और 7 मीन्स कि इन द वीक, होल वीक. ओके, ही कैन गो टू थ्रू द ई बैंकिंग. इट मीन्स कि 24 पर डे, हाउ मैनी आवर्स? 24 आवर्स, एंड इन द 1 वीक देयर आर 7 days. तो इट मीन्स टोटल 365 days a service. Okay, it means there is no all the time bank is open, at the night, at the morning, at the evening. Okay, you can do anytime e-banking services. Customer can make the permitted transaction from residence or office, and even when the traveling they need or not go to the bank. Okay, कि the customer can do the transaction from the home while he was traveling, or from office. It means कि from anywhere he can do the e-banking transaction, no need of going to the bank. Recording of each and every transaction include the sense of financial discipline. Okay,